Please type in your names in the chat. Today we'll be doing distributed lookup services and one kind of implementation of those which is based on distributed hash tables. So we know what is a hash table. So today we'll see what is a distributed hash table and how it is used for lookup services. Okay. So I've given two links for the material from where I've picked up the slides. So out of these, the one at Rutgers really explains it well. So this is not the only way of implementing the lookup service, the hash table. There are other ways also. But in our course, we have included just the hash tables. So if anybody is interested, you can go and read these notes, okay, at Rutgers, and you'll have a complete idea of what the field is about. So today we'll see, first of all, what is a lookup service. So lookup service, from the name itself, we can understand that a service which is looking up for some data. Okay, so because it is a distributed system that we are considering and data is distributed in the network. So if I have to look up the data, that lookup means I have to find the data. So where is a file located or where is a particular data object located, then I need a service which will find that for me. Now, how is it different from what we have seen till now? So if I say I have a database and then I need to find some data, so what do? I run a query. Okay. So something like that, it is similar to that only. We are looking up for some object, but the difference is that we don't want any centralized coordinator. So I don't want one central directory which is full of all the data. I want the service to be a distributed service. So abhi tak now we are about to end the course. So I hope everybody understands that centralized is not scalable, distributed is scalable. So though I want that the data is distributed, so the lookup service should also be distributed. So the problem is here limited to not finding all kinds of data. We are looking for finding values which correspond to some key. Okay, the key value, we understand what is a key value pair. Something like in your JSON data format. So you have a key and associated with that you have the data, which is called the value. So if I know the key, so the key can be associated with any kind of value. That value can be a file name, a shopping cart's ID, a session IDs, or a username. So key becomes like a variable that is pointing to some kind of data. That data can be varied types of data. So that is easier to implement, and the fastest data stores are the key value pair based stores. So if we have heard of Redis or we have heard of React, all these are key value stores which are very fast to look up. Okay, even Mongo is based on JSON data. So JSON data resembles a key value pair. So coming back to this, so distributed lookup service means I am trying to implement a service which is distributed in nature. Distributed by, because there is no one node which is doing all the work. The task is distributed among multiple nodes. And what is the task they are doing? They are trying to find some data. And what data we are assuming? We are assuming that every data has associated with it some kind of key, which is a search key. Based on which search key we will look for the data. The data can be located at any of the nodes in the distributed system. Okay, so this is the problem of distributed lookup, and ideally what we want is that there is no central coordinator, but still there are three approaches which have been used for locating such kind of data. One is a central coordinator type environment. So central coordinator, in which there is one coordinator which is maintaining all the information, and this has been used in Napster file sharing systems. Yeah, is there a doubt? Please ask if you have a doubt till now. Okay, so this is not what is recommended, but to start with or on a system where we know which are the nodes.
So even Google uses it in its Google file system. So if your nodes are not very dynamic, the topology is not dynamic, then this works where you have some central coordinator. Another approach is a flooding type approach. Flooding means you pass so many messages in the network. So it is like a flood of messages. Why? Because we are trying to locate a node which has the required data. So I pass a message to all my neighbors pass the message to their neighbors, and so on till we reach the node we are looking for. But the third one is what is called a distributed hash table, which is used in systems like this is an experimental system called, and this Dynamo is a data store which is used by Amazon. This is their proprietary technology, Amazon's Dynamo. Okay, so distributed lookup service can be implemented in a number of ways, and the one which we are doing today is a distributed hash table. Okay, so hashing, we know what is hashing. Hashing means I have some document or data X and I have K servers where I can store it. So I want to choose one of the K servers to use. Okay, so this is a normal hashing problem. So if I'm the most common hash function is a modulo function. So we number the servers 1 to K. Okay, there are K servers. So we number them 1 to K and then use a hash function on this document X and do a mod K, and we'll get the number of the server. So this is your normal hash function. Then you do a modulo K and you get the value of the server on which you can place this document. So the next time I want to look for the document, then what do I do? Again, I do a hash of the key, do a mod K, and then I'll find out where the server is on which the data is located. But what is the problem is, in a dynamic system where your servers are failing or maybe they are joining. So if you need more data, you also need to add more servers. ठीक है, तो अभी तक हमने डेटा प्लेस किया था हैश करके मॉड के सिस्टम से. तो अगर हमारा k बढ़ जाता है, that means some more systems have added or some node has failed, so this value of k changes, right? So what happens to the data that is already there, है ना? आप समझो इसको. तो मेरे पास 4 नोड्स थे, तो मैंने mod 4 करके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. किस उस पे कि अगर मेरे को डेटा फाइंड करना होगा, फिर से मैं की को हैश फंक्शन यूज करके mod k करके I'll find the data. But what happens if this k changes? So what you have to do, if k changes from 4 to 5 or 4 to 3, again you have to re-implement. So k की value ही change हो गई. इस कारण क्या होगा, most of the data will need to be moved. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारी k की वैल्यू चेंज हो गई है. So your entries, the data that you have already added might need to be remapped. Okay, I'm talking of k in terms of 4 and 5, but if it is in thousands or millions of servers or hundreds of servers, then there will be quite a lot of tasks in remapping. Okay, so we want this kind of functionality of the hash function, but we don't want to do this remapping if there is a change in the value of k. So instead of a hash table, we use what is called a distributed hash table. So distributed hash table is again a distributed system. So which will provide a lookup service. Hash table भी lookup service ही दे रहा है ना, कि आपने की दी, आपको पता चल जाएगा कि किस नोड पे उसके corresponding value stored है. ठीक है, तो all this data is stored in a DHT. Now the functionality we are looking for is कि अगर हमें की मालूम है, हमें पता होगा कि कौन से सर्वर पे वैल्यू स्टोर करनी है. स्टोर करते हुए, and when we are looking for the data, again we will get the same key and we will get the value. की वैल्यू समझ में आता है सबको? की वैल्यू जैसे अगर suppose I have to store a student's data, तो student colon name की बन गया और आपका नाम उसकी वैल्यू बन गया. स्टूडेंट कोलन एनरोलमेंट नंबर की बन जाएगा, वैल्यू आपके एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू बन जाएगी. बिल्कुल जैसे जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ना, वही चीज है की वैल्यू डेटा. बट एडवांटेज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज कि अगर नोड्स ऐड हो या नोड्स रिमूव हो, तो हमें बहुत कम डेटा रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़े. वी डोंट वांट टू रीड, बिल्कुल रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ये तो नहीं हो सकता. बिकॉज अगर कोई नोड रिमूव हो गया
तो उसका डेटा कहीं और तो हमें प्लेस करना ही पड़ेगा, या अगर हम कोई नया नोड लेकर आ रहे हैं तो हमें उस पर भी डेटा प्लेस करना है. So there should be some work, but that work should be minimum. All the data should not be redistributed if the nodes enter or more nodes enter or some nodes leave. Okay. So what do? Is we do a first of all a key space partitioning. अब की स्पेस पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि जितने आपके पास नोड्स हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो. यू हैव अ सेट ऑफ नोड्स. आई हैव 5 नोड्स. आई वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑन दीज नोड्स. ओके, जो नेम्स ऑफ यूजर्स समझ लो, मेरी कोई ई कॉमर्स की सर्विस है. I have the names of users that I want to store on these 5 nodes. So I do some kind of partitioning. तो partitioning मैंने कैसे कर दिया कि the node 1 will be responsible for all names that are between A to that start with A to the range, say let's say F. नोड 2 पे हम डेटा स्टोर करेंगे उन यूजर्स का जिनका नाम G से लेके M तक स्टोर्ड है. नोड 3 पे हम स्टोर करेंगे जिनका नेम N से लेके सपोज P तक है. तो ऐसे हमने पार्टीशन कर देना है अपनी की स्पेस को. नोड्स के ऊपर सम काइंड ऑफ नेटवर्क विच विल कनेक्ट देम. तो इस नेटवर्क को हम ओवरले नेटवर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो नेटवर्क वो हो गया जो एक्चुअली अंडरलाइंग नेटवर्क है. Overlay network is a network which was used to give some kind of specific topology to them, some kind of logical structure to them. Okay, then these DHTs, most of them will use some way of what is called consistent hashing. तो DHT सिर्फ कंसिस्टेंट हैशिंग ही यूज नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस यूज करते हैं. पर एक पॉपुलर मेथड ये सब करने का क्या है जिसको हम बोलते हैं consistent hashing. अब ये consistent hashing क्या चीज है which is used by DHTs. So now see, I have some keys. Okay, key क्या हो गया? यूजर का नेम. यूजर नेम फील्ड इज द की. वैल्यू क्या होगी? द एक्चुअल नेम विल बी द वैल्यू. So I am storing based on the key what is the value that is going to be stored. Key, what is the value to be stored? Key, what is the value to be stored? So now consistent hashing, what it will do is it will partition the key space, okay, the range of keys possible among the nodes. So in this slide, I can see what are the number of nodes here. Okay, so many nodes are there. So what is this blue line showing? That all the keys in this range till key 1 will be stored at this node. Okay. Similarly, all the keys in this range will be maybe stored on the nodes here. All the keys in this range will be stored here. So I am dividing the key space, partitioning the key space among the nodes. Partitioning का मतलब क्या हो गया कि हमने responsibility divide कर दी कि this particular node is responsible for keys of a particular range. ये वाला जो है ये है keys इसका. तो अब आप सोचो कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, इट नीड्स टू स्टोर डेटा ऑफ इट्स यूजर्स, तो सबको कुछ आईडी दे रहा है which starts with some letter. So now if I have divided all my keys, then what does it mean? That the node at one location is responsible for storing users with names starting from A to E. Okay? The node or this is responsible for storing for data from this to F. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? You want to ask some question? ठीक है, अभी और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये कैसे चल रहा है. Now what is the use is that now if suppose this particular node here leaves the system. Leaves का मतलब क्रैश हो गया, आपने रिमूव कर दिया, कुछ मेंटेनेंस हो रही है, किसी भी रीजन से ये अब नहीं है. अब आप देखो आपको क्या सारी कीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? नहीं. ओनली द कीज फॉर विच दिस नोड वाज रिस्पॉन्सिबल, ओनली दिस वन नीड्स टू बी चेंज्ड. ठीक है, सबको नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ जो कीज यहाँ पर स्टोर्ड थी, जिनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर स्टोर्ड थी, ओनली दोज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड. एज कंपेयर टू दिस, इफ यू आर यूजिंग हैश फंक्शन, तो मे बी आपको इससे बहुत ज्यादा कीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये वाली जो कीज है वही के वही जो है दे विल ओनली नीड टू बी रीमैप्ड. So what is the main idea is associate each node with one or more intervals of hash values. तो आपने की पे एक्चुअली हैश करते हो फिर मॉड करते हो ना, तो हैश वैल्यू इंटरवल्स के साथ यू आर एसोसिएटिंग एवरी नोड. So interval boundaries are determined by calculating the hash of each node identifier. So I'll just show you one example here. अब आप ये देखो कंसिस्टेंट हैशिंग मोस्टली कैसे काम करती है. ये राइट साइड पे फिगर है, इसको देखो, इसी से सारा समझ में आ जाएगा. दिस इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज. ये जो सर्कल है ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 0 से लेके मे बी 15 तक की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, सपोज हमारे पास 4 नोड्स थे, 1 2 3 4. ठीक है, हमने नोड की जो आइडेंटिफायर होता है, so every node in the system has an identifier. I'll apply a hash function on that node. Okay, do a mod, whatever is my hash function, do a mod, जो भी आपको करना है hash function करो. कैसा फंक्शन अप्लाई करना है कि हमें 0 से अगर ये 15 तक लाई कर रही है वैल्यूज, आई शुड गेट अ वैल्यू बिटवीन 0 to 15. फिर से सुनो, आई डू, आई टेक द नोड्स आइडेंटिफायर, सपोज एक स्ट्रिंग है उस पे हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और हैश फंक्शन अप्लाई करके हमें वैल्यू क्या मिल रही है, आई एम गेटिंग द वैल्यू विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 15. ठीक है, जैसे मेरी हैश की साइज के है और हमने मॉड 2 के सर्कल बना लिया. अब हमने डेटा स्टोर करना है. ठीक है, तो हम डेटा की जो की है उस पे भी सेम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी वैल्यू किसके बीच में लाई करे, फिर से 0 से लेकर 15 के बीच में ही लाई करे. ठीक है, तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉड 2 raised to power k सर्कल. तो k is 4, सो आई एम यूजिंग अ मॉड 2 raised to power 4 16 का सर्कल यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर से देखो, जो नोड का आइडेंटिफायर है उसको भी हमने मैप कर दिया एक वैल्यू पे जो 0 से 15 के बीच में लाई करती है. जो हमें डेटा को स्टोर करना है, ये जो ब्लू डॉट्स दिख रही हैं, उसको भी हमने हैश फंक्शन ऐसे अप्लाई किया कि इट आल्सो लाइज बिटवीन 0 to 15. नाउ व्हाट वी डू इज, जितनी भी वैल्यूज ये हैं, जैसे सपोज दिस इज 2 and 3, आई फाइंड आउट व्हाट इज द सक्सेसर बकेट ऑन द सर्कल. ये हैश बकेट है ना जो रेड वाली या नोड है, तो कौन सा नोड है जो इस डेटा के बाद सक्सेसर है. तो सपोज ये दो अगर हम डॉट सेकें तो विच इज अ सक्सेसर नोड, दिस वन इज अ सक्सेसर नोड. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. इसको देखो क्या किया एक्चुअली हमने, हमने अपनी जो हैश इंटरवल थी उसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, डेटा को भी उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये वाला जो डेटा है जो 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है, 15 पे है, 0 पे है, इनका सक्सेसर कौन सा, इसका सक्सेसर ये वाला नोड है. तो ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, इस नोड पे स्टोर होगा. अगेन सी दिस डेटा, so these two data, what is the successor node, this one is a successor node, so this data goes to this particular node. ये दोनों which is a first successor, ये वाला. तो जो भी उस रेंज में डेटा है वो सारा का सारा अपने नेक्स्ट सक्सेसर पे चला जाएगा. ओके, सो हैश ऑफ ऑब्जेक्ट, यू फाइंड आउट व्हाट इज द क्लोजेस्ट क्लॉकवाइज बकेट, और उसी बकेट पे आपने उस डेटा को स्टोर करना है. ठीक है, जब हम सिर्फ हैश फंक्शन यूज करते थे तो हम क्या करते थे, जो वैल्यू आती थी उसको हैश बकेट का वैल्यू ले लेते थे, आईडी ले लेते थे. अब हम क्या करें, हम रेंज पार्टीशनिंग कर रहे हैं कि ये जितना रेंज है इसका सक्सेसर कौन सा, ये रेड डॉट, इन दो का सक्सेसर कौन सा, ये वाला बकेट. तो ये डेटा किस बकेट में जाएगा, जो भी इसका सक्सेसर बकेट होगा. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so this data is going to this particular bucket. ये वाला जितना डेटा है ये इस बकेट पे चला गया, ये जितना डेटा है वो नेक्स्ट बकेट पे चला गया. तो यहीं से हमें आइडिया लग रहा है कि अगर सपोज ये वाला नोड फेल हो जाता है, ये वाला, ठीक है, तो कौन सा डेटा हमारा लूज हुआ, ये,
ओके, जिनके लिए अब कोई स्टोरेज नहीं बची। तो किसको रीमैप करना पड़ेगा? सिर्फ इन्हीं दो डेटा को हमें रीमैप करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक नया नोड ऐड कर देते हैं 8 के बाद, यहाँ पर एक और रेड डॉट लगा देते हैं, तो क्या होगा? ये जो 8 वाला डेटा है ये इस बकेट के जाने के बजाय the new successor will be this node, but rest of the data there will be no change। तो सिर्फ अगर किसी डेटा की इंटरवल में ही चेंज होती है, उसके और उसके सक्सेसर के बीच में कोई नोड जाता है या आता है, सिर्फ वही वाला डेटा ही चेंज करना पड़ेगा और कोई डेटा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एग्जांपल देखो। So we can see this particular example. A, B, C are three nodes. O1, O2, O3, O4 are the data objects that we need to store. We are using a consistent hashing function. तो हमने उसको मैप कर दिया किसी रेंज पे सब चीज को. So as a result, what is happening? Objects O1 and O4 ये दोनों जो है इनका सक्सेसर बकेट क्लॉकवाइज कौन सा आया? A. तो ये चले जाएंगे A पे. O2 का नेक्स्ट सक्सेसर कौन सा आया? B. O3 का सक्सेसर कौन सा आया? C. So this is how you are adding the data. Now suppose a node leaves the network. तो अगर सपोज यहाँ पर नोड ए नेटवर्क को लीव कर देता है, तो कौन सा डेटा है जिसके पास चेंज होनी पड़ेगी? O1 और O4. तो हम O1 और O4 को लिए फिर से फाइंड करेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट सक्सेसर डेटा. The next successor node, sorry, the next successor node is B. So O4 and O1 will also be stored on B in that case. Okay, so if a node leaves the network, all data objects of the failed node are gone, but the next node will store all the new data objects that would belong to the failed node. तो अब उसकी responsibility next node पे चली जाएगी. ऐसे ही अगर नोड ऐड होता है नेटवर्क में, तो उसको मैपिंग करेंगे हम किसी पॉइंट पे, और अब जो डेटा उस रेंज में लाई करेगा वो इस नोड पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा. अब वहां पे जो पहला वाला एग्जाम्पल था, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है. वहां पे हमें यहाँ पे सी दिख रहा था कहीं पर, तो सी चला गया, उसकी जगह पर डी आ गया. ठीक है, तो पहले हमारा O4 और O1 दोनों ए के पास थे, लेकिन अब डी बीच में आ गया. तो अब डी के कारण O4 का नेक्स्ट सक्सेसर नोड क्या बन गया? डी बन गया. सो O4 विल बी स्टोर्ड ऑन डी एंड O1 विल बी स्टोर्ड ऑन डी. Okay, so it is now belonging to node D. Okay, and so now there are some problems of this which you can maybe you already have come to see, that there can be some unbalanced distribution of nodes. अगर सबको equal interval नहीं मिल रही हर node को, तो हमारे पास unbalanced distribution की problem हो सकती है. और दूसरी चीज क्या है जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर कोई नोड लीव करता है नेटवर्क को, so what happens to the data that were already stored on that node? तो obviously वो data unavailable हो जाएगा. तो अगर हम फर्स्ट वाली चीज देखेंगे उसकी सोल्यूशन, कि अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम चेक कर सकते हैं, और सेकंड हम क्या देखेंगे कि अगर कोई नोड लीव करता है, so what happens to the objects which were already stored on that node? Obviously अगर एक ही कॉपी थी और वो चली गई, तो the data will become unavailable. And similarly if a node joins the network, तो अब हम क्या बोल रहे हैं इस वाले चीज में, कि ये नया आ गया, तो A के पास ऑलरेडी O1 और O4 की कॉपी थी, लेकिन अब ये नया नोड आ गया D, तो O4 जो है वो किसको बिलोंग करेगा? D को, बट A के पास ऑलरेडी इसकी कॉपी थी. ठीक है, तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ कंसिस्टेंट हैशिंग के साथ. तो मैं सीधा एग्जाम्पल से तुम्हें दिखा देती हूँ जो फर्स्ट अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की सोल्यूशन है. अब हम यहाँ क्या करते हैं, दैट फॉर फिजिकल नोड्स, एवरी फिजिकल नोड, तो यहाँ पर जैसे A B C फिजिकल नोड्स हैं,
we create virtual nodes for them on the ring. So virtual nodes क्या चीज है? फिजिकल नोड तो हमारे पास 3 ही थे. बेस्ड ऑन उनके पास कितनी स्टोरेज है, वी कैन क्रिएट मोर नोड्स फॉर देम. तो ऑब्वियसली, ओके, आई टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. शिवम बोलो. You want me to unmute you? Shivam, Shivam, you need to ask a question. Okay, you can ask your questions later, maybe, if you're not asking now. Okay, so virtual node क्या चीज है? उसी रेंज को हमने, अगर हमें ये लग रहा है कि ए के पास कम, जो हमने उसको डिवाइड किया है रेंज को, या if I have divided the range and some node is getting a smaller interval but it has higher storage, तो हमने क्या किया, रेंज में उसके करस्पॉन्डिंग मार्कर लगा दिया कि यहाँ पर A1 और A2. तो नोड तो एक्चुअली एक ही है, बट उसको हमने रेंज में 3 जगह पर रिप्रेजेंट कर दिया, 3 जगह वो शो अप कर रहा है. उससे क्या हुआ कि जो इंटरवल B1 से A2 के बीच वाली है वो भी A को मिल गई, जो B0 से C0 के बीच में थी, अब उसमें से ये वाला जो सबसेट है वो भी A1 को मिल गया. एक्चुअली नोड एक ही है, लेकिन हम इंटरवल को मोर फेयर मैनर में डिवाइड करने के लिए हमने उसके रिप्रेजेंटेटिव लगा दिए A1 और A2. ऐसे ही B0, B1, B2. सी के पास कम स्पेस थी, स्टोरेज कम थी, तो उसका एक ही नोड लगाया, C0 and C1. So why we are doing this is that we get a more balanced, a more fair distribution of intervals. So now instead of maybe one node getting overloaded, now you will have more than one representative in the interval. ये चीज क्या है ना, this ring is only a representative of dividing the interval of key space. कि की स्पेस को हमने नोड्स पे डालना है, तो किस नोड को कौन सी की स्पेस मिल रही है. अब अगर ऐसे होता A यहाँ पर, B यहाँ पर और C यहाँ पर, तो C को ये सारा डेटा मिलता, A को ये सारा मिलता और B को शायद सिर्फ इतना ही मिलता. तो हम इक्वली डिवाइड करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग वर्चुअल नोड्स बना रहे हैं. दूसरी चीज क्या थी कि अगर हमारा नोड लीव कर देता है या नया ज्वाइन करता है, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो वी आर यूजिंग द सेम फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक, दैट इज replication. So instead of storing the data on one node, what we do is we store the data on n number of nodes. What is n? N is the replication factors. तो कहाँ पर डेटा स्टोर होगा? एक तो जो आपने अभी पहले डिटरमिन किया, व्हाट इज द नेक्स्ट सक्सेसर नोड, वो बन जाएगा उसका होम नोड. तो अगर मेरा नेक्स्ट सक्सेसर नोड ए बन रहा है, सो माय होम नोड विल बी E. बट आई वांट टू स्टोर हाउ मेनी कॉपीज? आई वांट टू स्टोर n कॉपीज. तो एक तो ए पे आ गई, the rest n-1 will be on the nodes that follow in the clockwise direction. ठीक है. तो if I have 5 nodes A, B, C, D, E, my home node is A, my replication factor is 3, तो फर्स्ट कॉपी तो A पे ही स्टोर होगी. उसके बाद जो बाकी 2 कॉपीज हैं वो क्लॉकवाइज नेक्स्ट सक्सेसर्स पे स्टोर होगी. तो A के बाद अगर नेक्स्ट सक्सेसर मिलता है B, फिर उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर मिलता है C, तो बाकी 2 कॉपीज किस पे स्टोर हो गई? B और C पे स्टोर हो जाएंगी. ठीक है. तो अब अगर मेरा होम नोड लीव कर देता है नेटवर्क को, तो एटलीस्ट आई विल हैव डेटा ऑन n-1 नोड्स. ओके. ऐसे ही अगर एक नया नोड एंटर करता है, तो देन यू कैन एक्सेस द डेटा जहां पे भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा. तो एक कॉपी तो कहीं और पड़ी हुई थी, लेकिन उसका नया होम नोड बन गया, तो आपको जो भी फर्स्ट सक्सेसिव सर्च में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो. सो दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ लीविंग एज वेल एज ज्वाइनिंग इज हैंडल्ड. तो वील क्विकली सी over here.
सो वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अब देखो क्या क्या दिख रहा है हमें, ए बी और सी 3 नोड्स हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन फैक्टर भी हम 3 ही ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर रहे हैं O1 O2 O3। तो अब इसमें देखना है कि कहाँ पे स्टोर हुआ। सपोज O1 मैप्स टू दिस पॉइंट ऑन द रिंग, सो नेक्स्ट सक्सेसर उसको कौन सा मिला, A0, ठीक है। तो फर्स्ट कॉपी उसकी स्टोर हुई नोड ए पे, फिर आगे गए, यहाँ पर क्या मिला, B0, फिर आगे गए A1 मिला, बट A1 इज अ वर्चुअल नोड और A पे ऑलरेडी उसकी कॉपी थी। सो अगेन सी व्हाट इज द नेक्स्ट नोड, सो नेक्स्ट नोड इज C0। सो इट्स रेप्लिकेशन आर स्टोर्ड एट A, B एंड C। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो B1 A2 एंड C1, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ना, 3 ही कॉपीज थी और 3 ही नोड से, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चल रहा। लेकिन आप सोचो अगर यहाँ पे 5 नोड होते और 3 कॉपीज करनी होती, तो हम क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट सक्सेसर नोड मिलता जाएगा उस पे स्टोर करते जाएंगे। नाउ अ नोड D इज ज्वाइनिंग द नेटवर्क, यहाँ पर D एक एंटर कर दिया, ठीक है। देन किस किस का डेटा डी के ऊपर स्टोर होगा, यहाँ पे देखो अगर ये डी पे स्टोर होता है, तो अब अगर हमारा रेप्लिका जो भी A2 पे स्टोर होना था, अब वो किस पे स्टोर हो जाएगा, अब वो डी पे स्टोर हो जाएगा, डी की ये लोकेशन है ना। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा था वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो दिस रेंज विल बी नाउ मैप टू दिस, पहले किसके ऊपर था, ये वाला डेटा जो B1 से लेकर D की पोजीशन तक था, पहले वो A2 के पास था, अब वो किसके पास हो गया, A2 के पास होने का मतलब A के पास था, अब किसके पास हो गया, अब वो D के पास चला जाएगा। तो अगर B को लोकेट करना है कोई डेटा, तो उसको पहली कॉपी D पे ही मिल जाएगी, अगर इसको लोकेट करना है तो उसको पहली कॉपी D पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये कोई नोड छोड़ता है, देन अगर जैसे A, if the node A leaves, तो object A1 will still be accessible on the node B and C। तो ये तो नॉर्मल रेप्लिकेशन हमने कर दिया, इसी चीज को बोलते हैं मेंबरशिप चेंज, ठीक है। तो ये 2 लास्ट एग्जांपल्स है, ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ फिजिकल नोड्स दिखाए हैं, वर्चुअल नोड्स नहीं दिख रहे हैं तुम्हें। रेप्लिकेशन फैक्टर इज टेकन एज 3। Now there is a node X which is joining the system, पहले नहीं था, अब X आ गया। X के आने से किस किस पे डिफरेंस पड़ेगा, B पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब बाकी नोड्स को वो, क्योंकि देयर इज एन ओवरले नेटवर्क, सो अब हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 मान रहे हैं अगर, तो यहाँ पर B पे किस किस का डेटा हो सकता था, वापस से यहाँ देखो, B पे किसका डेटा हो सकता था, A का हो सकता था, H का हो सकता था, सिमिलरली B का डेटा C पे हो सकता था, B का डेटा D पे हो सकता था, ठीक है। जो भी डेटा B पे है वो C पे हो सकता है और D पे हो सकता है, क्योंकि हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 मान रहे हैं। तो जो भी डेटा B पे आएगा वो किस पे और स्टोर होगा, B पे, C पे, D पे। जो डेटा A पे आएगा वो किस पे स्टोर होगा, A पे, B पे, C पे। अब हमने क्या कंडीशन मानी कि एक नया X आ गया, तो ये वाले जितने नोड्स हैं इन सबको फर्क पड़ रहा है X के आने से। So X will tell H, A, B, C, D that I have joined. Now what will be the difference? जो रेंज G और H के बीच में था, जो H पे स्टोर हो रहा था, पहले उसकी कॉपी कहाँ पे स्टोर हो रही थी, A पे और B पे, अब किस पे स्टोर होगी, A पे और X पे, ठीक है। बिकॉज हम रेप्लिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है, आई एम स्टोरिंग द वैल्यू ऑन H, आई एम स्टोरिंग द वैल्यू ऑन A एंड द सक्सेसर। तो पहले सक्सेसर B था, अब सक्सेसर X हो गया, तो जो भी डेटा GH का था दैट इज ऑल्सो बीइंग स्टोर्ड ऑन X, ओके। जो रेंज HA में था वो किस पे स्टोर हो रहा था, A पे, और रेप्लिका स्टोर हो रहे थे B और C पे, लेकिन अब रेप्लिका किस पे स्टोर होने चाहिए, X पे और B पे, ठीक है। जो GH अब X पे चला गया, ऑब्वियसली अब वो B से ड्रॉप हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर ये वाला डेटा HA वाला भी यहाँ से ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक। X का डेटा अब हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो A और B का डेटा अब किन दो में चला गया,
AX में और XB में. इंटरवल डिवाइड होगी ना. पहले all the data of AB was stored at B, replicas were stored at C and D. Now what will happen? एक इंटरवल में तुमने ब्रेक लगा दी, यहाँ पर नया नोड हो गया X. So AX will be stored on X, B and C. XB will be stored on B, C and D. That is why the range is getting split here. ठीक है. अब यहाँ पर देखो इसका contrasting action. B has left the system. So if B has left the system, where was his data? B was on B, B was on C, and B was on D. So I can retrieve the data from C and D. Where will the data go? जो डेटा B पे था अब उसका नेक्स्ट सक्सेसर हो गया C. तो C का डेटा अब कहाँ कहाँ स्टोर होगा? C पे, D पे और E पे. ठीक है. तो B has departed. तो जो रेंज GH था ये वाला H पे स्टोर हुआ, उसका रेप्लिका था A पे और B पे. But B has gone. So where will the data be copied now? Copied to C. जो HA रेंज था A पे था, B पे था और C पे था. अब किस पे होगा? A पे, C पे. But now it will be also copied to D. जो रेंज AB था यहां से लेकर यहां तक वो B, C और D पे था. अब किस पे होगा? E पे भी स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब वहां पे स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ? AB और BC क्या बन जाएगा? एक AC बन जाएगा, है ना. पहले यहाँ पर AB था और BC था, बट B तो हट गया. तो नाउ ऑल द डेटा इन दिस रेंज विल बी रेफर टू एज AC. और AC कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा? C पे, D पे और E पे. Okay, so this is how you distribute the data and also look for the data. So हमने करना क्या है? हर फिजिकल नोड को और हैश वैल्यू इंटरवल को सेम रेंज में मैप कर देना है और सक्सेसिव को देखते जाना है. सो प्लीज रिमेम्बर कि DHTs को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंट हैशिंग ही नहीं होती है. देयर आर अदर मेथड्स आल्सो. लुकअप सर्विसेज के लिए सिर्फ DHT ही नहीं होते, और भी मेथड होते हैं. हमने बीच में से एक वाइडली यूज्ड पॉपुलर वाला मेथड पढ़ा है जिसको हम यूज करें वाली स्लाइड्स में. ठीक है. वर्चुअल नोड से हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा अनबैलेंस्ड लोड नहीं हो और एप्लीकेशन से we will solve the problem of leaving and joining the networks. Okay, so I'll finish the slides here. I'll upload the slides and some questions based on this on your classroom. So I see that not everybody is submitting the tutorials, but बच्चा उसको करना